What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 15th of April and tomorrow is Sensex weekly expiry. While our markets were closed yesterday, US markets saw a green closing, almost 1.2% green close kiya. And fun fact is, US markets are about to hit fresh all-time highs. While our markets are nowhere near the all-time highs, but we opened with a significant gap up, almost 350 to 400 points gap up के साथ निफ्टी खुला and 24,000 के ऊपर decisively markets trade किया पूरा दिन. And intraday volatility काफी कम रहा because the entire day the markets got stuck in a small 150 point range. 24,200 के आसपास markets dilly dally करता रहा. The intraday volatility was pretty much died down and there was a significant crush in India VIX as well. Almost 9% crush हो गया India VIX and today the India VIX is closing somewhere around 18.5 levels. So we saw decent amount of crush in the long term option contracts, but weekly का Sensex option premiums जो है they saw almost 50% crush overnight. Sensex straddles which had closed at almost 1450 points on Monday evening opened at 750. मतलब almost 700 points of overnight crush, more than 50% of overnight crush आज देखने को मिला. And as the markets opened there was a bit of a dip which spiked these straddles back to 800 levels, but from that point onwards there was a linear crush in the Sensex straddles. And as the markets are about to close, the straddles are closing somewhere around 670, which is probably the lowest since the last 6 or 7 weeks since the war broke out. So tomorrow it's going to be very interesting because yet again we're going to be seeing Sensex straddle open sub 500 and the markets are also indicating that intraday में ज़्यादातर volatility नहीं होने वाली है, but it again it is expiry and expiry related flows के हिसाब से volatility ज़्यादा रहने वाला ही है at least post 2 PM. So let's get to the terminal and let's see कल के expiry के लिए हमारा trade plan क्या बन सकता है. Alright, markets seem to be discounting all sorts of bluffs by Donald Trump because Donald Trump ने 2 बार ईरान को धमकी दिया है, threaten किया है to take over the Kurg Island, to actually bomb their power plants, desalination plants and all that. But every time the deadline came closer, Trump kind of changed his stance and started to talk about the truce, started to talk about the peace talks, started to talk about negotiations and all that, and nobody knows, but at this point of time the markets seem to be discounting all the Trump's tactics and all the Trump's bluffs, and at this point nobody knows what's the course of action, not even Trump at this point. ठीक है, but यहाँ पे एक अच्छा खासा एक bottom markets ने बनाने जैसे लग रहा है. So if we go back to Nifty's chart, 22,000 levels will be acting as a support. अगर market नीचे आता ही भी है तो then it should be on a bad news which is much worse than whatever the bad news we have got so far, because market same news के लिए 2 बार react नहीं करता. तो अगर market यहाँ पे थोड़ा dilly dally कर सकता है, but again 24,400 to 24,500 का जो level है, यहाँ पे जो band है 100-200 points का जो band है, it will be acting as a decent amount of resistance and the entire market should be watching this particular level very closely. तो यहाँ पे 2 kind of price action possible है. One is यहाँ पे markets आते ही a lot of people would create short positions and अगर उनका short covering trigger हो जाता है तो then the markets will straight head into 25,000 levels. But वहाँ से market में एक pullback आता है and अगर ये level respect करता है तो then एक price action point ऐसे this kind of a price action will be imminent and इस price action point के बाद हम लोग थोड़ा index पे long जाने का plan कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक profit booking आ जाए, markets यहाँ पे थोड़ा बहुत pullback दे दे and वो जो pullback है 24,000 के अंदर अगर hold कर देता है, contain कर देता है and उसके बाद markets ने यहाँ पे breakout देता है, then also we can actually start planning for index longs on a positional basis. अगर lower time frame पे बात करें तो today was practically a non-event kind of a day because the entire day the markets got stuck in a small 150 point range and हमने decide किए थे कि सिर्फ आज के लिए intraday के लिए it is a buy on dip kind of a day. तो basically जो भी markets में intraday में dip आने वाला है वहाँ पे हम लोगों को हम लोग decide किए थे कि puts को हमको short करना है. तो यहाँ पे 2-3 opportunities आए markets में and the entire day the markets got stuck in a small 150 point range. So the markets are steadily hovering about 24,000 levels and tomorrow is Sensex expiry and अगर सेंसेक्स की वॉल्स की बात करें तो यू कैन सी what kind of a beautiful crush we got, but of course इस crush को कोई materialize नहीं कर पाते because almost 1500 point का gap up ही हो गया था and जो भी crush अब wall crush मिला होगा तो all that wall crush should have gone in whatever the delta move that the index gave. And towards the end of the day we are seeing around 660 का straddle close, so most probably कल 450-400 के आसपास straddle open होने वाला है and that would mean that again tomorrow it's not gonna be free lunch for the option writers and at the same time it's not gonna
गोना बी फ्री लंच फॉर ऑप्शन बायर्स एज वेल. मतलब कल अगर 400 रुपीज पे स्ट्रैडल ट्रेड करना शुरू करेगा 9:30 के पहले, दैट ऑल्सो डजंट मीन दैट वो हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल कर लेंगे एंड मार्केट्स किसी ना किसी डायरेक्शन में फटेगा. बिकॉज इफ यू नोटिस ओवर द लास्ट 3 सेशंस, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो ऑल 3 days एज लॉन्ग एज द मार्केट्स आर ट्रेडिंग अबाउट 24,000 लेवल्स, मतलब निफ्टी 24,000 लेवल्स के ऊपर जब ट्रेड करता है, दैट इज व्हेन सेंसेक्स स्टार्ट्स टू ट्रेड अबाउट 77,000 लेवल्स. यू कैन सी दैट द इंट्राडे वोलेटिलिटी इज डाइंग डाउन एंड मार्केट्स एक नैरो रेंज काइंड ऑफ अ डे बना रहा है. सो टुमारो मार्केट्स कहाँ पे ओपन होने वाला है, वहाँ उसके बेसिस पे हम लोगों का स्ट्रैडल ओपन होने वाला है. तो इफ वी सी अ गैप अप और अ फ्लैट ओपन और वी सी एनी ओपन विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज, देन एक्सपेक्ट द स्ट्रैडल टू डीके ऑन एन इंट्राडे बेसिस. तो जो 650 रुपीज पे स्ट्रैडल क्लोज हुआ है, एक्सपेक्टेड टू ओपन सब 500 450 के आसपास भी ओपन होने का चांस ज्यादा है. एंड अगर 400 पे गलती से 400 रुपीज पे भी अगर स्ट्रैडल खुलता है या 930 के आसपास 400 के आसपास स्ट्रैडल ट्रेड करना शुरू करता है, देन ऑल्सो आई विल नॉट बी टू सरप्राइज्ड. ठीक है, तो ओनली प्लेस वेयर थोड़ा बहुत वापस मार्केट में पैनिक सेट हो जाएगा, दैट इज इफ द मार्केट ओपन्स बिलो दिस रेंज, स्पेशली इफ द मार्केट ओपन्स बिलो 77,600 या 77,500 के आसपास. अगर मार्केट इस लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाता है, देन एक्सपेक्ट द स्ट्रैडल्स टू ओपन अबव 500 एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत ये जो हमारा जो हाइपोथेसिस है कि एक नैरो रेंज डे में ही मार्केट रहने वाला है, दैट विल ऑल्सो काइंड ऑफ नेगेटेड. सो एनी गैप अप above this level, wait for the markets to come back toward today's high, and this pullback should be used as some sort of an opportunity to go long in the markets. यहाँ पे long कैसे जाना है, at the money puts को short करो and stop loss रखो. At this point I would not recommend you to trade debit call ratios or something, because volatility subside हो रही है and markets में इतना ज़्यादा intraday में moves नहीं आ रहे. जो भी moves आ रहा है वो positional basis पे आ रहा है. तो यहाँ पे अगर आप debit call ratios करोगे, debit put ratios भी करोगे, तो markets उतना move आपको नहीं देने वाला है. So in this situation, जब जहाँ पे एक फॉलिंग विक्स काइंड ऑफ अ सिनेरियो आता है, तो देन योर गो टू अप्रोच शुड बी टू शॉर्ट द ऑप्शंस. इधर नेकेड ऑप्शन शॉर्ट करके आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं या आप क्रेडिट स्प्रेड्स भी ट्रेड कर सकते हैं. सो अ बिग गैप अप, वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव अ पुल बैक एंड देन यूज दिस पुल बैक टुवर्ड्स द टुडेज हाई एज सम सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग. ठीक है, अगर एक बड़ा गैप अप खुल जाता है, वील यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक दोस ट्रेड्स विच हेल्प इन फिलिंग दिस गैप. मार्केट्स मतलब एक गैप फिल करेगा करके एंटिसिपेशन के साथ हम लोग ट्रेड करना है. तो उसको कैसे करना है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल फॉर्म होने दो एंड फर्स्ट 5 मिनट का अगर कैंडल का लो ब्रीच हो जाता है, देन विल गो बेरिश एंड वहां पे उस ट्रेड को हम कवर कर सकते हैं समवेयर अराउंड टुडेस हाई. अगर टुडेस हाई के आसपास मार्केट्स आता है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से ऊपर मार्केट्स जाएगा करके हम लोग एक लॉन्ग बेट भी ले सकते हैं. ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे बीच में खुलता है, आज के रेंज में खुलता है, तो देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेंज विल बी टेकन आउट पोस्ट 1 o'clock. 1 o'clock के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तो देन वी शुड बी ओपन टू टेकिंग अ ट्रेंड फॉलोइंग काइंड ऑफ अ ट्रेड टुमारो ड्यूरिंग एक्सपायरी. तो मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे नीचे की तरफ एक बार आपको एक स्पाइक देगा एंड उसके बाद मार्केट वापस फिर से रेंज के अंदर आएगा एंड उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं 1 o'clock के आसपास अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, देन वी शुड गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट. देन द अदर साइड इज ऑल्सो ट्रू, अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली 10 o'clock के पहले मार्केट्स ने इस रेंज को तोड़ देनी चाहिए. तो इट शुड नॉट बी वेटिंग टिल 2 o'clock और 1 o'clock फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली टेक द रेंज ऑन द डाउन साइड. तो अपसाइड अगर मार्केट्स ब्रेकआउट देना है, तो देन लेट्स वेट फॉर द ब्रेकआउट आफ्टर 12 o'clock और 1 o'clock. बट अगर डाउन साइड को अगर मार्केट का ब्रेकडाउन ट्रेड करना है, तो देन दिस ब्रेकडाउन शुड आइडियली हैपन बिफोर 10 o'clock, बिकॉज मार्केट्स में अपसाइड जाने के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज मार्केट्स ऑलरेडी 1200 पॉइंट्स का एक रैली ऑलरेडी दे चुका है. तो इंट्राडे में उतना ज़्यादा ट्रेंड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑन एन अपसाइड. बट डाउनसाइड के लिए मार्केट्स के पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. तो अगर मार्केट्स को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो देन दिस लो ऑफ टुडे शुड बी टेकन आउट बिफोर 10 o'clock. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो देन अगेन वील गो बैक टू आवर सेफ हेवन अप्रोच, वेयर वी वेट फॉर द फर्स्ट 60 minutes ऑफ प्राइस एक्शन टू फॉर्म, दैट इज द इनिशियल बैलेंस टू फॉर्म. एंड अगर इनिशियल बैलेंस बहुत वाइड है एंड 10 o'clock के आसपास मार्केट इनिशियल बैलेंस के सेंटर में ट्रेड कर रहा है, तो देन विल टेक दिस रेंज एज द रेंज फॉर द डे एंड विल ट्रेड द रेंज इन डेल्टा न्यूट्रल वे. बट अगर मार्केट का इनिशियल बैलेंस काफी छोटा है, तो देन विल वेट फॉर दिस इनिशियल बैलेंस टू ब्रेक आउट ईदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड एंड देन विल ट्रेड दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, दीज आर on a broader sense मेरा जो ट्रेड प्लान है कल के लिए, and I hope you guys have a good expiry tomorrow. I'll see you after tomorrow's expiry. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.